गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को आवाज़ तो आ ही रही होगी एंड Yes, sir. राइट, ओके, थैंक यू। सो लेट मी शो द स्क्रीन so that we can start the next topic. So today's topic is मिले मशीन मुरे मशीन। लास्ट टाइम हमने इससे रिलेटेड थ्योरी तो पढ़ी ली थी, द आइडिया बिहाइंड द मशीन्स। ओके, but before moving forward, let's move towards the some example of the milling machine and mure machine. Let me find some machine for the same. We call this a machine with output. So machine with outputs, ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, मीले आमले मूरे मशीन। सो मशीन विद आउटपुट में लास्ट टाइम हमने जैसे बात की, इसमें कोई फाइनल स्टेट नहीं होती। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इट। लेट्स से हमारे पास इनपुट अल्फाबेट जो है, जो इनपुट अल्फाबेट्स हमारे पास हैं ए कॉमा बी। टपल्स अगर हम याद रखेंगे तो हमारे लिए चीज़ें आसान रहेंगी। हाउ मेनी टपल्स आर देयर? सो इनपुट अल्फाबेट सिग्मा ए कॉमा बी। यार ये बड़ा चक्कर है, आप लोग प्लेट आते हैं। आउटपुट अल्फाबेट we call it del। यहाँ अलग अलग तरह के सिंबल आपको मिले होंगे, कहीं ये वाला डेल मिला है, लास्ट एक ये वाला भी रिप्रेजेंट किया है, बट इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको ये कंसीडर करें आउटपुट अल्फाबेट, राइट। सो आउटपुट अल्फाबेट्स आर 0,1। okay, now after that we have some states. We represent capital Q as states. So for example, we have Q0, comma Q1, comma Q2, and Q3. We have some states. Now, and then Q0 is an initial state. It is an initial state. जो कंप्लीट मशीन है उसको हम डिफाइन करते हैं m इक्वल्स टू कैपिटल Q comma sigma comma transition, I mean output from alphabet, then Q0, and then output function lambda. I hope these are 5. There's one more thing which is missing. This is del, the transition function. Now with this function we have, अब हमें ना ये डेल जो ट्रांजिशन फंक्शन है ये पक्का दिया होगा, ट्रांजिशन फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शन। अब ये हमें या तो टेबल के फॉर्म में दिया हो,
अब या तो हमें ये सब ला एक से कहना चाहिए कि वी हैव थ्री ways to have the transitions. फर्स्ट इज या तो टेबल हो या डायग्राम हो या फिर रिटर्न में फंक्शन दिया हो. Now, so we have table here. So table represents present state. Okay. Now, with that, we have next state. Next state, and next state depending upon the input. Like input, we have input A, and we have another input B, and then we have some output. Okay. Output. Now, so the current state is we have total four states, Q0, Q1, Q2 and Q3. So here we have to mark only input state. So this is the not input, the initial state. Now the transition functions are given as A to Q1, B to Q3, Q1 से A Q3, B Q1, Q2 से A Q0, B Q3, Q3 से A Q3 और P Q2. Q0 पर आउटपुट आपका 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है. Now, in this case, the output is dependent upon the state. Just check this out. If we reach at Q0 state, then we will receive an output of 1. This is the initial state. If we are at Q1 state, if we are at Q1 state, we will receive an output of 0. Let me create some space here. If we are at Q2 state, we will receive an output of 0. And if we are at Q3, then we will receive an output of 1. अब Q0 से हम A इनपुट पे कहाँ जा रहे हैं? Q1 पे जा रहे हैं. Then we went to the Q1 with A. And B इनपुट पे हम Q3 पर जा रहे हैं. Okay. With B input, we reach to Q3. Now, Q1 से हम A इनपुट पर कहाँ जा रहे हैं? Q3 पे जा रहे हैं. A इनपुट पे, right? With A input. With A input. And B input पे हम कहाँ पर हैं? Q1 पर ही है. So we are at B. Q. Now Q2 से हम A इनपुट पर कहाँ जा रहे हैं? We are going at Q0. With A input. With A input. और B इनपुट पे कहाँ जा रहे हैं हम? हम जा रहे हैं Q3. Right? So we are going at Q3 with B input. अब Q3 से A इनपुट पर हम कहाँ जा रहे हैं? Q3 पर ही है. और B इनपुट पे हम जा रहे हैं वापस Q2. ना, अब हम Q0 स्टेट पर जब भी आएंगे हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. हम Q1 स्टेट पर जब भी आएंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. क्यों? जो आउटपुट है वो स्टेट डिपेंडेंट है. दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट.
सो इस पर्टिकुलर केस को हम कहते हैं मूरे मशीन। When the output is dependent only on state. Now let's move towards the next example. Okay. So अब मैं पूरा डिटेल लिखने की वजह सीधे टेबल लिखता हूँ एंड देन वी विल डिफाइन रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सो एग्जाम्पल, सो present state, now we have input A, we have another input B, sorry, small b. सो अब जहां मूरे मशीन में, नाउ लेट्स चेक दिस आउट, जहां मूरे मशीन में हमारे पास इनपुट आउटपुट जो है वो स्टेट डिपेंडेंट था, वहीं मिले मशीन में आउटपुट जो है वो स्टेट के साथ साथ इनपुट डिपेंडेंट भी होगा। सो फॉर इनपुट ए we will move to some state and we'll get some other output, and with input B we'll move to some other state and we'll get another output. So we have state Q0, Q1, Q2 and Q3. Q0 is our starting state, so Q3, Q1, 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 0, 1, 0, 1, Q1, Q0, Q1, Q2, and 0, 1, 1, 1. Down. So this represents our Mealy machine. Let's draw the diagram. So we have state Q0. Now input is not only state dependent as well as the output is not only state dependent as well as the input. So let's draw the states first. So Q0 say Q1, Q2, and then we have a Q3, right? So Q0 से आप A input पर Q3 जा रहे हैं, okay, and you are getting an output of 0. So A oblique 0, we write this way, A oblique 0. For for B input we are moving towards Q1, so for B we get an output 0 against the input B. आफ्टर दैट Q1 से अगर A इनपुट है तो हम Q1 पर ही हैं और आउटपुट हमें मिलता है 1, और Q1 से B इनपुट पे हम अगर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, वापस Q0 जाते हैं और हमें आउटपुट मिलता है 1, राइट। नाउ इट्स टर्न फॉर Q2। Q2 से A इनपुट पर हम Q1 पर जाते हैं और आउटपुट हमें मिलता है 0, और Q2 से हम B इनपुट पर भी 1 ही जा रहे हैं, राइट, ऐसा ही है टेबल में, यस और नो? हेलो, यही है ना टेबल में? हेलो, आर यू गाइस लिसनिंग? हेलो, जो मैं कह रहा हूँ वही है या कुछ और है? So avoid just to avoid confusion, let me create another path which represents
B oblique 1. Now Q3 से 1 इनपुट पे हम Q1 पर जा रहे हैं, A इनपुट पे। A इनपुट पे हम Q3 गए एंड विल गेट एन आउटपुट 1 एंड B पे हम Q2 पर गए और आउटपुट हमें मिला 1. Now, so this is our diagram. इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में इसको हम कहते हैं मीले मशीन. Let me write here. मीले मशीन. अगर मैं मशीन के टपल्स डिफाइन करूं तो m मशीन के टपल्स वही हैं सारे. जैसे कहना चाहिए कि the 6 tuples we were using, capital Q, sigma, del, transition function, output function, initial state Q naught. Right? अब कोई एक इसमें एक पॉइंट है नोट करने वाला, कोई बताएगा? आई होप नाउ both screens are visible to you, मतलब both examples are visible to you. So there is a point which needs to be noted. Who's available on the class? I mean, कौन कौन है जो ये दोनों एग्जाम्पल, दोनों जो मशीन का जो स्ट्रक्चर है, दोनों जिसको जो देख रहा है, सुन भी रहा है? Anyone can respond now, because I'm gonna ask some important point or question, or you can say discuss about it. It's a one line thing but it's important. आप देख के भी चेक कर सकते हैं. Anyone who's available? Hello, are you guys listening or not? सर मुझे Okay, you guys मैं are. जो आउटपुट है वो Your voice is not clear. Just a second. Now, tell me, आयुष क्या कह रहे थे आप? सर मूरे मशीन में आपको आउटपुट जो है वो स्टेट के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन ठीक है, मीले मशीन में आपको वो इनपुट से एसोसिएटेड है. ठीक है. अब अगर आप ध्यान दोगे, so if you are at initial state, then you will get output in one case, but you won't get output on another state. कंसीडर मूरे मशीन में जहां आउटपुट जो है वो स्टेट के साथ एसोसिएटेड है और आप इनिशियल स्टेट क्यू नॉट पर हो, मीन्स योर स्टार्टिंग स्ट्रिंग, योर स्ट्रिंग विल स्टार्ट फ्रॉम क्यू नॉट. बिफोर स्टार्टिंग यू विल गेट एन आउटपुट, राइट? राइट or not? यस सर. Right? But in case of Mealy machine, if you start with Q0 or Q1 or whatever states, you won't get output until you read an input, right? Right or not? यस सर. So in case of Mealy machine, in case of Moore machine, note input output Mealy Moore, sorry, let me write this way.
मैंने गलत लिख गया, बट मैं यहाँ लिखता हूँ। सो मिले मूरे इनपुट आउटपुट। अगर मिले में आपका इनपुट n नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है तो आउटपुट आपको n ही मिलेगा, बट मूरे में अगर n है तो आउटपुट आपको n+1 मिलेगा। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? And the logic behind it and the reason behind it? Hello, is this clear? Oh, ये क्लियर है? आगे बढ़े? Yes, sir. Right. Okay, now important thing is the conversion from one machine to another machine. Suppose you have given a Mealy machine, now you have to convert it into Moore machine. Now that's the job. देखो एज पर सिलेबस ये मेरे हिसाब से आता नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट दे मे आस्क इट। ठीक है, सो let me tell you how to convert a machine into another machine. So we may be given with some example, और इसके बाद हम इसमें मीले मूरे मशीन डिज़ाइनिंग भी होती है, बट डिज़ाइनिंग मुझे लगता नहीं यहाँ पर अभी ज़रूरत है, बिकॉज सिलेबस उतना डिटेल आपको दिया नहीं है। अगर दिया हो तो हम डिज़ाइन कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द रियल स्टफ। रियल स्टफ यू मीन टू से कि वंस कॉम्प्लीमेंट अगर आपको चाहिए तो भाई आपने इनपुट दिया और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकल के एज ए आउटपुट आ जाए। नाउ दिस जॉब इज द आई मीन दिस इज द जॉब we used to do, right? So instead of doing, let's convert. So question is construct um, Mealy machine equivalent to the Moore machine given a present state। अब हमें मूरे मशीन दी हुई है और हमें उससे मीले मशीन बनानी है। सो प्रेजेंट स्टेट against the input we will be having few things. We have input, let's say 0 and input 1, and for output we have 0 1. Okay, so state is q0, q1, q2 and q3, right? In state is q3, q1, q2 and then q3, and q1, q2, q3 and q0. Output is 0 1 0 0. So this is the Moore machine given. Now for Mealy, now let me use the another color. We will have a present state. Now we will have some input 0, and for input 0 we will have some output. Again, फिर input 1 and then an output set of input 1. Okay, now let's start with the initial state. We have initial state q0. We are moving q0 to q3 on output on input 0, right? Now let's check what kind of outputs we have. Okay, so let's place simple q3. So q3 have an output of 0, then we'll get an output 0.
Q0 से 1 पे आप Q1 पर जा रहे हो, तो हम Q1 पहुंच गए और Q1 का आउटपुट 1 है, देन विल हैव अ 1 आउटपुट हियर। ये लाइन आई समझ में? हेलो, डिड यू गेट दिस? ये आपको समझ में आया क्या? हेलो, अनदर Q1 में 0 इनपुट पे आप Q1 पर जा रहे हो, तो सर 0। Q1 पे 1 कैसे आ गया? हाँ बता रहा हूँ, Q1 से 0 इनपुट पे आप Q1 पे जा रहे हो, तो यहाँ भी Q1 पे 0 आ गया। अब Q1 का आउटपुट 1 है, तो यहाँ पर भी Q1 का आउटपुट 1 आएगा। दिस आउटपुट विल बी द आउटपुट ऑफ द स्टेट वी रीच्ड विद द इनपुट। हम Q0 से 1 इनपुट पर कहाँ जा रहे थे? Q0 से 1 इनपुट पे हम Q1 पर जा रहे थे, तो हम Q1 पर आ गए यहाँ पर, और हमें आउटपुट कौन सा मिलेगा? जो Q1 स्टेट है उसका मिलेगा, जहां हम पहुंचे हैं। सिमिलरली Q1 से 1 इनपुट पे आप कहाँ आए? Q2 पर आए, और Q2 का आउटपुट क्या है? 0, देन वी गॉट दिस आउटपुट। हाँ जी, बताइए। डिड यू गेट दिस? हेलो, आया समझ में? लेट मी फिनिश दिस टेबल। ओके, नाउ इन केस ऑफ Q2 से 0 आउटपुट के लिए, 0 इनपुट के लिए आप कहाँ हो? Q2 पर। Q2 का आउटपुट है 0, देन विल टेक इट हियर। Q2 से 1 पे आप Q3 पे जा रहे हो, तो Q3 यहाँ आ गया, और Q3 का आउटपुट जो है वो 0 है, तो यहाँ भी 0 आ गया। नाउ Q3 से Q3 का 0 ये, Q3 से Q0, और Q0 का भी 0 है, दैट्स 0 हियर। दिस इज द कन्वर्शन। लेट मी नो, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। Check everyone. Any confusion in it? नो सर। No? Okay. Let's move further. मूरे मशीन से मीले मशीन कन्वर्जन आसान है, इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन बता रहा हूँ। जो चेंजेस हैं वो आप कर लीजिएगा। भाई टेबल बनाना है, टेबल से डायग्राम बनाना है, वो आप बना के देख लीजिएगा। Now let's move to another question, which is मीले टू मूरे। अब मीले मशीन आपको दी हुई है और उससे आपको मूरे मशीन बनानी है। नाउ दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स जॉब। नाउ लेट्स टेक एन अगेन। क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ मूरे मशीन equivalent to the given मीले मशीन। सो मीले मशीन हमें दी हुई है। लेट्स से लेट्स मूव टू थ्रू द डायग्राम। सो डायग्राम में इन्होंने दिया हुआ है, कैसे भी आपको दिया सकते हैं। Q0, we have Q1, we have Q2, and we have a Q3, right? So Q0 से A इनपुट पर हम जा रहे हैं Q2 पे। सो A के अगेंस्ट हमें आउटपुट मिल रहा है 1, और Q0 से हम B इनपुट पे जा रहे हैं Q3 पे, जिसके अगेंस्ट आउटपुट मिल रहा है हमें 0। Q1 से हम A इनपुट के पे जा रहे हैं Q0 पर, जिसके अगेंस्ट हमें आउटपुट मिल रहा है 0, और B के लिए हम Q1 पर ही है, जिसके लिए आउटपुट हमें मिल रहा है 1। Q2 से A के लिए हम जा रहे हैं Q1 पर,
जिसके अगेंस्ट आउटपुट मिल रहा है हमें 1, और B के लिए हम Q2 पर ही हैं जिसके लिए हमें आउटपुट मिल रहा है 0। नाउ Q3 से A के लिए हम जा रहे हैं Q2 पर जिसके अगेंस्ट आउटपुट हमें मिल रहा है 0, और B के लिए हम जा रहे हैं Q1 पर जिसके लिए हमें आउटपुट मिल रहा है 1। नाउ so this is the question given to us. Now let's draw the table for it. Okay, so we have present state. We have total 4 states like Q0, Q1, Q2 and Q3. We have total 4 states. This is the initial one. First of all, input A and corresponding output. So अगर मैं Q0 से बात करता हूँ, Q0 से A पर मैं कहाँ जा रहा हूँ, Q2 पर जा रहा हूँ, आउटपुट मुझे मिल रहा है 1। Q1 से A पर मैं जा रहा हूँ, Q0 पर आउटपुट मिल रहा है मुझे 0। Q2 से A पर मैं Q1 पर जा रहा हूँ, आउटपुट मिल रहा है मुझे 1, और Q3 से A पर मैं Q2 पर जा रहा हूँ और आउटपुट मिल रहा है मुझे 0। नाउ B के लिए Q0 से B इनपुट के लिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, Q3 पर, और मुझे आउटपुट मिल रहा है 0। Q1 से मैं B के लिए Q1 पर ही हूँ और आउटपुट मिल रहा है मुझे 1। Q2 से मैं B पर Q2 पर ही हूँ, आउटपुट मिल रहा है मुझे 0। एंड Q3 से B पर मैं Q0 पर जा रहा हूँ और आउटपुट मिल रहा है मुझे 1। नाउ वी हैव this structure. Okay, the input structure: input A, input B, sorry, small b. Okay, usually इनको हम states बोलते हैं. These are not input, these are states. इसको मैं next state लिखते हैं, next state. Okay, now consider an important point. For Q0 we are getting an output 0 here and 1 here. We are receiving two kind of output for Q0. Similarly, for Q1 we are getting one kind of output. Here Q1 1, यहाँ भी Q1 1. So Q1 के लिए हमें एक तरह का ही आउटपुट मिल रहा है, बट Q0 के लिए हमें दो तरह के आउटपुट मिल रहे हैं. सिमिलरली Q2 की अगर हम बात करें तो यहाँ हमें Q2 1 मिल रहा है और यहाँ हमें Q2 0 मिल रहा है और यहाँ भी हमें Q2 0 मिल रहा है. So again for Q2 we are getting two kind of outputs. One is 0, another is 1. For Q3 we are getting one and one output, that is Q0. So when we convert this machine into Murray machine, so we will have states Q0 and Q1. So Q0 पे हमारे पास दो तरह के आउटपुट है, तो we will have Q0 0, Q0 1, two states. Similarly Q1 पे हमारे पास सिंगल ही है, तो we will have Q1 only. Q2 पे अगेन हमारे पास दो टाइप के आउटपुट है, तो Q2 0, Q2 1, एंड Q3 पे भी हमारे पास एक ही है, then Q3 only. Now with this we are able to manage the outputs we are getting from the states. So Q0 0 है तो आउटपुट 0 रहेगा, Q0 1 है तो आउटपुट 1 रहेगा. Q1 में एक ही आउटपुट है, वो Q0 1 है. Q2 0 है तो 0 आउटपुट है, Q2 1 है तो 1 आउटपुट है. Q3 पे आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है, that is 0. So it will be here. Now it comes to the transition, that is A and B, present state. So Q0 से आप ट्रांजिशन कहाँ है आपका, A इनपुट पर आप क्या जा रहे हो, 2 पर जा रहे हो, राइट? यू आर गोइंग एट 2. विच 2? बिकॉज वी हैव टू Q2 स्टेट जो है हमारे पास दो तरह की, एक 0 आउटपुट वाली, एक 1 आउटपुट वाली. तो यहां हम किस स्टेट पे जा रहे हैं, 1 आउटपुट वाली पे. सो वी विल मूव टुवर्ड्स Q2 1. एंड सिमिलरली Q0 1 पे भी हमारे पास यही आएगा. और Q0 से B इनपुट पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q3 पर. सो सिमिलरली Q3
यहाँ भी Q3। ये बात कितने लोगों को समझ में आई है? हेलो, कितने लोगों को ये ट्रांजिशन समझ में आया? हेलो, ये ट्रांजिशन समझ में आया क्या? लेट्स टेक फर्दर। Q1, Q1 से A इनपुट पे आप Q0 पे जा रहे हो, राइट? अब Q0 आपके पास दो हैं, एक जीरो आउटपुट के साथ, एक वन आउटपुट के साथ। तो यहाँ कौन सा Q0 है? जीरो आउटपुट वाला। देन वील गो टू Q, कलर इज चेंज्ड, Q0 0। अब यहाँ Q0 0 क्यों आएगा? बिकॉज यहाँ Q0 वो है जो जीरो आउटपुट जनरेट कर रहा है, और Q0 आपके पास दो तरह के आउटपुट जनरेट कर रहा है। सो वी हैव टू डिफरेंट स्टेट्स, राइट? Q0 से Q1 से B इनपुट पे आप कहाँ जा रहे हो? Q1 पे जा रहे हो। Q1 तो एक ही है, सो वील हैव Q1 हियर ओनली। सो ऑटोमेटिकली Q1 1 यहाँ पर आ गया। ना Q2 0, Q2 से A इनपुट पर आप कहाँ जा रहे हो? Q1 पर जा रहे हो। कौन से Q1 पे? जिस पे आउटपुट आपको 1 मिल रहा है। Then we'll go Q1, so Q2 से 1 जा रहे हैं, Q1, and Q1 has the one output only। Q2 से B इनपुट पे आप कहाँ जा रहे हो? Q2 पर जा रहे हो। कौन सा Q2? जिस पे जीरो आउटपुट है। अब Q2 में आपके पास दो हैं, जीरो आउटपुट है, सो Q2 0। अगेन Q1 है, Q2 0, Q1 0, ये दोनों स्टेट सेम ही रहेंगी। देन Q1 here and Q2 0 here। लास्ट Q3, Q3 से A इनपुट पे आप कहाँ जा रहे हो? Q2 विद जीरो आउटपुट, सो Q2 0 and Q0 with one output, so Q0 1। आया समझ में? Now see this, the machines are here, Mealy and Murray, and the conversions are here। किसी का कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। शॉर्ट रिकैप में आप देख सकते हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। Mealy machine is a machine, I mean both the machines are which generates output against some input, okay? अगर मुरे मशीन की बात करें, द मोस्ट लेफ्ट वन, तो मुरे मशीन में आपके पास आउटपुट जो है वो स्टेट डिपेंडेंट है, दिस केस, दिस केस। और वहीं मीले मशीन में अगर हम बात करें तो आउटपुट जो है वो आपका स्टेट के साथ साथ इनपुट डिपेंडेंट भी है। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ मुरे मशीन टू मीले मशीन। दिस इज वन विद द मीले टू मुरे मशीन। This topic is as important as a subject name। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि मशीन्स में कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो कि विद आउटपुट होती हैं, और उसके दो टाइप होते हैं, और उसमें इस तरह से कन्वर्जन होता है। क्योंकि एज पर सिलेबस अगर आप जाओगे तो वहाँ स्पेसिफिकली कहीं भी मशीन विद आउटपुट्स
या मिले मशीन मूरे मशीन ऐसा नहीं लिखा है, उन्होंने फाइनाइट स्टेट मशीन लिखा है, एंड फाइनाइट स्टेट मशीन इंक्लूड्स दिस. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. आप में से किसी ने वीडियोस चेक किए जो मैंने क्लासरूम वीडियोस अपलोड किए हैं यूट्यूब पे? जस्ट फॉर द रीकैप, आप कभी भी कुछ देखना चाहें तो आप आराम से वहाँ देख सकते हैं. आपने देखी क्या? हेलो. No, sir, not yet. हाँ, आप जो क्लासरूम वीडियो है ना, ये एज इट इज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा. ठीक है, मैंने क्लास में लिंक भी शेयर किया हुआ है गूगल क्लासरूम पे भी, तो वहाँ से भी इसको देख सकते हैं. जस्ट फिनिश दिस. ओके, कैन चेक दैट आउट. ठीक है, वी आर एंडिंग दिस क्लास हेयर ओनली. और सर वो प्रीवियस ईयर पेपर हो जाता है। प्रीवियस ईयर, एक मिनट यार, मैं ना क्लासरूम पे ही अपलोड करूँगा, मेरे सामने ही रखे रहते हैं, मैं भूल जाता हूँ. मुझे बस रिमाइंड करा देना, मैं आज शाम को ही कर दूंगा. ठीक है, एक सैम्पल पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको अपलोड करके दे दूँगा. ठीक है ना. एग्ज़ाम्स अभी यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आने दो, उससे पहले कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है यूनिवर्सिटी ऑफलाइन भी कराए. कैन नॉट से एनीथिंग एज ऑफ नाउ. चांसेस की बात भी नहीं है कि कितना परसेंट चांस है, बिकॉज सारे चांस फेल हो जाते हैं ऑर्डर्स के आगे. लॉजिकली आइडियली जो लगता है, होना तो ऑनलाइन चाहिए, बट अगर दिसंबर तक एग्ज़ाम होगा तो, अगर अगले जनवरी फरवरी में गए देन दिस वोंट हैपन. फिर तो आपके ऑफलाइन ही होंगे. और जो आपके बचे हुए रिजल्ट्स हैं उनको भी आने में मेरे हिसाब से 7-8 दिन, 10 दिन के अंदर आपके बाकी सारे आने लग जाएंगे. सो एनीवेज यू विल गेट डिटेल्स सूनर. ओके, तो इसमें ऐसा कोई बहुत लोड लेने वाला वो नहीं है. सो ओके, आई एम एंडिंग दिस क्लास हेयर एंड विल मीट टुमारो. ओके.